So good morning. This is the classification of hydrocarbons. Basically, this classification is very general classification. There are certain compounds which have a carbon-carbon double bond as well as carbon-carbon triple bond. There are certain compounds which have a aliphatic chain as well as aromatic chain. So such compounds, those compounds, how are they classified? So that depends upon the principal functional group. Principal functional group means the main function. So alkene is preferred over alkynes. Now alkanes is a totally different class. So it should not have any pi bond. Okay. So it is very simple and straightforward, we can say. Similarly, in a closed chain, when I talk about unsaturated hydrocarbon, aromatic compounds many times do not show uh, properties of alkene. As we move ahead, you will understand it. Properties of alkenes. Okay, they have something different properties. So aromatic compound is altogether a different class of hydrocarbon. Okay, and which compounds are called as aromatic? So till now you know benzene is benzene and benzene derivatives are called as aromatic. Absolutely correct. But there are certain compounds which do not look like aromatic benzene, but still they are aromatic. Okay. Now, what is the criteria for it, and what are the different examples for it that we are going to discuss in this chapter? Okay. Now, in this chapter, first we start with alkenes, then alkynes, and then aromatic compounds. That ends our chapter. And basically, तो ये है classification of hydrocarbon. Now, my question ये है, you can put your answers in a chat box. Okay, write all possible isomers of a formula C5H12. तो by the way, यहाँ पे मैं structural लिखूंगा. I'm talking about structural isomer. Okay, write IUPAC name for all. Is that clear? ये है क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन. क्या करना है? राइट ऑल. तो पहला चीज क्या है? डी यू. अगर याद है तुम लोग को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था मैंने, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. यस, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था. यस. सो जस्ट फ्लिप योर फॉर्मूला. कैसे किया? तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखता हूँ. C+1 माइनस H plus X minus N डिवाइडेड बाय 2. तो पहले du निकल. du मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. अगर du नॉन जीरो है, du क्या है? नॉन जीरो है, विच मीन्स उतने वहां पे रिंग या डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे. उतना वहां पे रिंग और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे. चलो स्टार्ट डूइंग. Put your answers in a chat box. We will wait. Then we'll take our attendance. Yes, come on guys. क्या हो गया? नहीं आ रहा है? नील. हाँ. So Vaishnavi, put your
Answer in a chat box. Write the IUPAC name in a chat box. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So this is nothing but 2-methyl pentane. 2-methyl pentane. Then this is 3-methyl pentane. So 2-methyl pentane and 3-methyl pentane, they are position isomers of each other. They are position isomers of each other. Okay. After that, 2,3 dimethyl butane, 2,3 dimethyl butane, 2,2 dimethyl butane. Okay, so these two are position isomers of each other. Ah, 40 nitrogen. Huh? Kyle, Vaishnavi, what happened? There are 40 nitrogens. 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9, plus 2, 11, plus 3, 14. 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 1, 8, plus 6, 14. Done? चलो, now let us move ahead. Next concept. हाँ, अभी एक नया concept हम लोग देखते हैं. So everybody understood what is this stand for? You know, in isomerism, if you recall, isomerism, we discuss mainly two types. One is structural isomerism, and the other one is stereoisomerism. Stereoisomerism is because of the spatial arrangement of atoms. Now, in a stereoisomerism, again there are mainly two types. One is a conformational isomerism, and the second one is a configurational isomerism. Okay. Now, configurational is further divided into geometrical and optical. Okay. Now, here we are going to discuss this concept, conformational isomerism. Now, to understand conformational isomerism, I want to give you conformational analysis or conformation and conformational analysis or isomerism, which are also called as conformers. Okay. Now this arises due to rotation of sigma bond. This arises due to I'll say free rotation of sigma bond. Now what do you mean by that? Let us try to understand this. सब लोग ध्यान दो इधर, ये दिख रहा है सबको? Okay. तो दिस इज ब्लैक कार्बन, जो ये कार्बन है.
ये है कार्बन एंड द व्हाइट वंस आर हाइड्रोजन। तो ये मॉडल जो है वो कौन से कंपाउंड का होगा, कोई बता सकता है? कौन से कंपाउंड का होगा ये? इथेन। इथेन, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। देखो sp3 हाइब्रिडाइज है, जब ये sp3 हाइब्रिडाइज है ये टेट्राहेड्रली अरेंज होगा। टेट्राहेड्रली अरेंज मतलब क्या होगा? अच्छा ठीक है, ओके, दिख नहीं रहा है क्या? ओके, हाँ, तो ये देखो, ये है टेट्राहेड्रल कार्बन। टेट्राहेड्रल कार्बन मतलब दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, वन फेस, बराबर। ये एक, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस, दिस इज द फोर्थ फेस, फोर फेसेस, देयरफॉर इट इज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अभी ये इथेन का स्ट्रक्चर है ना। व्हेन आई टॉक अबाउट इथेन, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, या इवन ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, इसको ना हम लोग रोटेट कर सकते हैं ऐसे। अभी इसमें रोटेशन करोगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैंने इसको रोटेट किया, अभी इसको फिक्स रखना है और दूसरे को रोटेट करना है, तो जब मैं रोटेट करूंगा ना, कैन यू सी हियर, जस्ट लुक एट हियर, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, आई कैन गेट व्हाट आई सेड, स्पेशियल अरेंजमेंट। the arrangement of these hydrogen with respect to these hydrogen varies. So there are infinite number of structures possible. Are you getting my point? What I said? Infinite number of structures are possible. Infinite number. बहुत सारे structures हम लोग को मिल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा अरेंजमेंट है। अभी इसको मैं रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, बाय एंगल ऑफ 0.5 और 0.1, अगर मैंने रोटेट किया, ये किया, ऐसा करते 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 देखो ये आ गया, और जैसे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ मुझे नए नए कंपाउंड मिलते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन, okay, so I can rotate this through 360 degree, and therefore we have a more and more compound. But the problem is that ये जो नए नए कंपाउंड्स मिल रहे हैं, the energy difference between them is very small, and therefore we cannot separate them. Okay, चलो मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ, लिखो जरा मैं जो बता रहा हूँ वो। So write along with me, isomerism, isomerism due to rotation of sigma bond. I will explain you that again with the model. Rotation of sigma bond is called as conformational isomerism. Conformational isomerism. तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग डेप्थ में जाएंगे, okay? And the compounds are called as, and the compounds are called as conformers of each other. This is a new thing you are going to discuss today. Conformers of each other. Okay, so I'm taking an example. How to represent this? I think we discussed Sauer's projection formula and Newman projection formula. है ना? We discussed Sauer's projection formula and Newman projection formula. Yes or no? Right? So I will show you with both. First of all, let us understand Sauer's projection formula.
Salt's projection formula of ethane. Okay, so how will you draw the Salt's formula? Recall Salt's formula. We are putting a carbon-carbon bond in a plane. Then correct. This is one arrangement where these are the hydrogens. Okay. So in our textbook, they are talking about only ethane, but I want to tell you about butane also. Okay. So first of all, we'll discuss ethane. So this is one arrangement. Na? The another arrangement is like this way. I will tell you the names also about for these. Okay, this way. Okay, and here we go for the hydrogen. So both these structures are obtained because of rotation of ethane molecule. Means when I rotate this ethane molecule through 60-degree, I will have this structure. When I rotate this molecule through 60-degree again, I will have this structure. Are you getting my point? There is one more way of representation that is called as Newman projection formula. Now, in case of Newman projection formula, I'm just revising this part, just pay attention all of you. Newman projection formula. In the Newman projection formula, what are we doing? We are so the first structure I'm drawing here, structure 1 only I'm drawing here. Structure 1. Okay, it is like this way. So this is called the front carbon. So front carbon is bonded with what? Hydrogen. So I'm putting a hydrogen over here, hydrogen here, hydrogen front carbon. That means I am observing molecule from this side. And then we have a backside molecule, backside atom. And that backside atom will be what? Carbon only. Okay. Backside atom. This is a backside atom. Now the backside atom also connected with hydrogen. So it should be like this way. Right? Here, these are the hydrogens which are peeping out. Okay, which are peeping out. Huh? So this is the backside hydrogen. Is that clear? And what is the another way of representation? This is the front side carbon. Okay. And then we have backside carbon, rear carbon. We call it the rear carbon. And the representation is like this way.
this way. Okay. Now listen carefully. When I say, so this structure and this structure is same. Only the representation is different. Please pay attention. This structure and this structure is same. Viraj, good morning. Okay. So structure 1 is called as eclipse conformation. Eclipse. And structure 2 is called as staggered. Structure 1 is called as eclipse and structure 2 called as staggered. Remember that change in angle, okay, gives an infinite number of conformations. Now what I want to tell you, see this angle, actually this angle with a geometry, when I put it in a 2-dimension, then only it exists. But when I consider 3-dimension, then this angle, the angle between this hydrogen and this hydrogen, does not exist. So when I put it in a 2-dimension, this angle, which is nothing but 60 degree, while this angle is nothing but 0 degree. This is called as dihedral angle. This is called as dihedral angle. What? Dihedral. The name of this angle is what? Dihedral angle. Okay. Dihedral angle. So change in dihedral angle gives infinite number of conformation. Here I am writing. Please draw this. Change in dihedral angle give infinite number of conformations. Please note down this. Okay. अच्छा आगे और हो गया तो बोलो. Done. Should we move ahead? Yes, Pranali. Yes, sir. Okay. Now so I'm writing few points over here. First point is for ethane, infinite numbers of identical non-isolable. I'll explain you what do you mean by non-isolable. Non-isolable conformations are possible. Conformations are possible. Okay. On rotation of carbon-carbon sigma bond. Okay. Carbon-carbon single bond through 360 degree. Second point. If all infinite conformations, so in all infinite conformations, bond length, bond energy, bond angle are constant. Okay. Bond length, then bond energy, bond angle. कौन सा bond angle?
bond angle, that is HCH or HCC, are constant. They are not changing. Only dihedral angle changes. Now what do you mean by isolable? Isolable का मतलब ये है कि मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ. जैसे अगर मैं बोला, मैंने लिया ना इथाइल अल्कोहल लिया और इथाइल अल्कोहल और वाटर लिया, तो मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ. कैसे? बाय कंसिडरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज. दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है. ओके, उनके इवन केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है. तो जब मैं वो मिक्सचर से अल्कोहल को सेपरेट करा, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेट. सेपरेट करके बॉटल में भर के रख सकते हो तुम. बट ये जितने भी, मतलब ये जितने भी आइसोमर्स रहेंगे, मेजरली दो के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं. ओके, तो वी कैन नॉट सेपरेट देम. नाउ व्हाई वी कांट सेपरेट देम? बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस. हाँ, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ एनर्जी डिफरेंस क्या होगा. देखो, all of you just see here. ये है पोटेंशियल एनर्जी कर्व. पोटेंशियल एनर्जी मतलब we are calculating potential energy of each structure. There are methods. Okay, we are not interested in those methods now. कि कैसे करते हैं सर? We do not have that calculation part also. Okay, so don't worry about it. ठीक है? So ये है minimum energy. This is the highest energy. So we start from zero. Zero मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना. जीरो, ये 0 डिग्री सेल्सियस एंड 60, देन 120, ऐसे हम लोग करेंगे, राइट? तो जीरो. नाउ जीरो. Now if you see here carefully, the hydrogen atoms are almost overlap. तो यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि दे आर इन वन प्लेन. Similarly, these hydrogens and these hydrogens, they are in one plane. These are CH bond and this CH bond in one plane. Since they are in one plane, तो वहां पे ना एक छोटा सा रिपल्शन होगा. And that repulsion causes, मतलब उस रिपल्शन को बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन. क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन. ओके, so because of the torsional strain, the energy of this structure, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्लिप्स फॉर्म सबसे ज्यादा होगा. और यहाँ पे देखना, ये सब अपोजिट प्लेन में, ये इधर है तो ये अपोजिट है. ये देखो, ये इधर है तो ये किधर है? देखो, अपोजिट है. मतलब दे आर अपोजिट, दे आर नॉट मैचिंग. एंड देयरफॉर यहाँ पे रिपल्शन क्या रहेगा? सबसे मिनिमम रहेगा, स्टैगर्ड फॉर्म. और केमिस्ट्री में जहां पे रिपल्शन ज्यादा, वहां पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा, और जहां पे रिपल्शन कम, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा. तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसका रहेगा? जीरो, राइट? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, 0. मतलब ऐसे होगा. Now as I start rotating, ये रिपल्शन क्या होते जाएगा? जैसे मैं इसको रोटेट करने चालू करूंगा, धीरे 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 ऐसे यहाँ पे. ओके, ये जो टॉर्शनल स्ट्रेन है, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो रिपल्शन है, वो क्या होगा? कम होगा. एंड देयरफॉर एनर्जी आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, नाउ जब आफ्टर 60 डिग्री इट इज ऑलमोस्ट अपोजिट. तो यहाँ पे देखो रिपल्शन क्या है? मिनिमम होगा. एंड देयरफॉर एनर्जी वहां पे क्या रहेगा? कम रहेगा. ओके, 60 डिग्री. अगर मैंने और रोटेट किया, अभी इसको मैंने और रोटेट किया, तो वापस यही स्ट्रक्चर आएगा. तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगा? बढ़ गया. मतलब 60 के बाद 120 है ना, ये 120 डिग्री के लिए.
again you start rotating, again energy decrease, ये हो जाएगा 180 डिग्री, again it goes on increasing to 40 degree, again it goes on decreasing 300 degree, and again it goes on increasing 360 degree. Understood? तो जो जिसका एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, जिसका एनर्जी ज्यादा है वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा. Therefore staggered form is more stable than eclipse form. Understood? Yes. एक नोट लिखता हूं जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. Okay. The conformations which lying on the minima of potential energy diagram are called conformational isomer और conformer. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना इनको क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं द conformations which is lying on minima of potential energy diagram are called as conformational isomer. और कॉन्फॉर्मर्स. किसी को डाउट, यहाँ पे किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? हेलो, चलो नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. प्रोपेन सिमिलर टू द इथेन रहेगा. ओके, बट अभी हम लोग एन ब्यूटेन की तरफ जाते हैं. हाँ, एवरीबॉडी डन? एनी डाउट ओवर हियर? ये डायग्राम समझ में आया सबको? राइट डाउन टू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. किसी को अगर नहीं समझ रहा है तो मैं बता रहा हूं. देखो इधर मैं एक बार वापस समझाता हूं ये चीज को. सी है, ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन. ये देखो, ये है इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का. बराबर, सब लोगों को दिख रहा है? ये दिख रहा है इथेन का स्ट्रक्चर. आई होप नाउ यू कैन सी. देखो ये कैसे पिप कर रहा है, पिपिंग. हाँ, सामने वाला ये हाइड्रोजन की तरफ देखना. अभी मैं क्या करता हूं, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं. सब लोग ध्यान दो, इसको मैं रोटेट करूंगा. मतलब आप पीछे वाले को रोटेट करो या फ्रंट वाले को, इट्स अप टू यू. बट जब भी तुम लोग रोटेट करोगे तो एक को फिक्स रखना, दोनों को रोटेट नहीं करना है ना. तो एक को फिक्स रखना है, कोई भी, whichever one you like. ओके, तो मैं पीछे वाला, फ्रंट वाला फिक्स रख रहा हूं और अभी पीछे वाला रोटेट कर रहा हूं. देखो, कैन यू सी हियर? आफ्टर रोटेशन आई एम गेटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो ये देखो, ये आ गया. ये क्या है, मतलब व्हेन आई रोटेट थ्रू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री से रोटेट किया. बराबर है? कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर नाउ? राइट. और अगर मैंने 60 डिग्री में रोटेट किया, आई विल हैव दिस स्ट्रक्चर. और अगर मैंने 60 डिग्री में रोटेट किया, आई विल हैव दिस स्ट्रक्चर. और अगर मैंने, मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. ठीक है? अभी मैं क्या बताया मैंने कि प्रोपेन इज सेम.
प्रोपेन में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, प्रोपेन हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू द ब्यूटेन, एन ब्यूटेन. मतलब प्रोपेन में यहाँ पे एक कार्बन आएगा ना, यहाँ पे है, यहाँ पे किधर तो एक कार्बन है. सो इट विल हैव द सेम टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा. टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये देखो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड, ये दोनों के बीच का, अभी ये दिख रहा है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, बट इट्स वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल ना. सो दीज बॉन्ड्स आर, इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टू ईच अदर. सो उसमें एक छोटा सा रिपल्शन होता है. ओके, मतलब जो भी साइंटिस्ट है उनके दिमाग में जब आया होगा कि वो रिपेल करेंगे ना, बिकॉज दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, राइट? यस वत्सल, अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, प्लीज नोट डाउन नाउ टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल स्ट्रेन, it is repulsion between electron pairs. It is a repulsion between electron pairs of adjacent bond, of adjacent bond is known. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन. Okay, it is minimum, it is minimum in staggered and maximum in eclipse. Okay, now second step जो मैं बताने जा रहा हूं, जो हम लोग को एन ब्यूटेन में काम आएगा. वैंडर वॉल स्ट्रेन. एक्चुअली वैंडर वॉल अट्रैक्शन होता है ना, वैंडर वॉल अट्रैक्शन, बट यहाँ पे वैंडर वॉल स्ट्रेन. वैंडर वॉल स्ट्रेन क्या होता है? पहले मैं लिखता हूं वैंडर वॉल स्ट्रेन क्या होता है वो, then we will discuss about it. It is a repulsion between, it is a repulsion between two groups, two bulky groups present on adjacent carbon atom, present on adjacent carbon atom. Okay, it is minimum, again same, it is minimum in staggered and maximum in eclipse. Remember that hydrogen van der Waals strength, hydrogen van der Waals strength is negligible because very small size. Neglected. Okay, explain करता हूँ. Yes, now just see here. This is the structure of N-butane. Okay. This is the structure of N-butane. ये देखो N-butane. अभी मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ये वाला, बट इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है. मैं ना ऐसे लेता हूँ. ये देखो ध्यान से देखना, ध्यान से.
ये देखो ऐसे, ओके। तो ये जो दो कार्बन है ना, ये वाले, ये दो कार्बन, मिडल कार्बन, 2 3 कार्बन, उसके थ्रू ले रहा हूं। कैन यू सी हियर कैसा हो गया ये? तो द रोटेशन आई एम गोइंग टू डू विद 2 3 कार्बन। नाउ जो मैं अभी बात कर रहा था, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? द रिपल्शन बिटवीन ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, और ये टॉर्शनल स्ट्रेन सब में रहेगा। नाउ वांडरवॉल स्ट्रेन, देखो अभी ये बल्की ग्रुप है, ये दो एटम है ना, ये देखो ये एक बल्की ग्रुप है ये, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों के बीच में थोड़ा रिपल्शन रहेगा, बराबर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये है अपना एक्लिप्स फॉर्म। अगर मैंने इसको रोटेट किया, देखो मुझे ऐसे स्ट्रक्चर मिला है, थ्रू 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करा, बराबर, इसको मैं और रोटेट करता हूं तो ये ऐसे होगा 60 डिग्री। तो अभी ये क्या हो गया? एक दूसरे से दूर है ये, है ना? ये देखो अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम रहेगा। अंडरस्टूड? यस, आई विल शो यू विद द डायग्राम, बट ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, हाँ, ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, ओके, एक दूसरे से दूर है, तो इसमें वांडरवॉल स्ट्रेन क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। बट अगर समझो मैंने ऐसे रखा, ऐसे, तो यहाँ पे वांडरवॉल स्ट्रेन क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? हेलो? सो अभी हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। यस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट ओवर हियर? वैंडरवॉल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में कुछ डाउट है? ओके, या, सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ conformational analysis. Conformational analysis of N-butane. ओके, तो ये देखो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, 0 मिथाइल हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन हो गया, दिस इज द रियर कार्बन, मिथाइल, ये 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन भी ज्यादा है और वैंडरवॉल स्ट्रेन भी ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स। मैं इसको रोटेट करता हूं थ्रू 60 डिग्री, फ्रंट कार्बन आई एम कीपिंग एज इट इज, ओके। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हियर वी हैव अ मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे वंडरवॉल स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया और टॉर्सनल स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम हो गया, बट ये स्टैगर्ड नहीं है। क्यों स्टैगर्ड नहीं है? क्योंकि देखो कैसा है, ये एक दूसरे से नजदीक है ये। अच्छा ठीक है, इसको मैं रोटेट करता हूं, इसको बोलते हैं गाउच फॉर्म, गाउच फॉर्म। इसको मैं रोटेट करता हूं अगेन 60 डिग्री, फ्रंट कार्बन एज इट इज, CH3 H H, वेदांत पांडलस्कर गुड मॉर्निंग, विराज, विराज शाह गुड मॉर्निंग। अभी इधर देखो, यहाँ पे भी इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्ट्रक्चर 1, एक्लिप्स है, बट मिथाइल और हाइड्रोजन सामने नहीं है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, बट ऑब्वियसली गाउच से कम रहेगा। इसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स, जस्ट एक्लिप्स फॉर्म। Again it is rotated through 60 degree, so what will be the structure? CH3
H, H, and now methyl group इधर रहेगा H and H. इसको बोलते हैं antiform. This is called as antiform. अगर मैंने वापस इसको रोटेट किया थ्रू 60 डिग्री तो क्या होगा? ये तुम लोग आगे कर सकते हो 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री एंड अगेन 60 डिग्री. ये तुम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे. इज दैट क्लियर? सेम मिलेगा ना मुझे. एंटी के बाद उल्टा जाएंगे एक्लिप्स, वापस गॉच फॉर्म एंड फुल्ली एक्लिप्स. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अगर समझो, पहले ये ड्रॉ करो, फिर मैं तुम लोग को उसका वो ग्राफ भी बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी वाला. वो कैसे रहेगा और उससे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी. कम ऑन फास्ट. ओके, सी हियर नाउ. फर्स्ट वी स्टार्ट विद 0 डिग्री. मतलब जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर. एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स्ड है तो हाईली एनर्जेटिक. बराबर. सो कैसे रहेगा ग्राफ? ऐसे. उसके बाद मतलब मैक्सिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग गाउच फॉर्म. अभी गाउच फॉर्म मतलब फुल स्टेबिलिटी नहीं ना. सो ये आएगा ऐसे. बराबर. दिस इज 60 डिग्री. Now again it increases. अभी जब इंक्रीज हो रहा है eclipse, but that eclipse is not equal to 0 डिग्री, तो एनर्जी वापस बढ़ेगा. ओके, ये क्या हो गया? 120 डिग्री है ना. अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? 120 के बाद एंटी फॉर्म हो रहा है ना. एंटी फॉर्म मतलब 180 में क्या हो रहा है? एंटी फॉर्म. ना एंटी फॉर्म हैज मोर स्टेबिलिटी बिकॉज यहाँ पे देखो methyl are opposite to each other, so van der Waals strain almost negligible, right? तो इसलिए ग्राफ आएगा ऐसे 180. करेक्ट. 180 के बाद इसके बाद वापस 60 तो क्या होगा? एक्लिप्स होगा, बट दैट एक्लिप्स इज नॉट फुल्ली एक्लिप्स, तो एनर्जी बढ़ेगा यहां तक. करेक्ट. ये क्या है? 240 डिग्री. वापस अगर तुम लोग रोटेट करोगे इसको तो गाउच मिलेगा. गाउच फॉर्म क्या होगा? लेस एनर्जी, मतलब ये ऐसे होगा 300 और 360 में एनर्जी मैक्सिमम होगा बिकॉज अगेन दैट बिकम फुल्ली एक्लिप्स. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके. तो अभी लोअर एंड मतलब ये वाले पार्ट जो ये ना ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है, ये स्ट्रक्चर 4 है, स्ट्रक्चर 5, स्ट्रक्चर 6, स्ट्रक्चर 7. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मिनिमम एनर्जी 180. बराबर. तो स्ट्रक्चर 4 मैक्सिमम स्टेबिलिटी. उसके बाद स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 6. उसके बाद स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 5 एंड स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 8. अंडरस्टूड? किसी को डाउट है यहाँ पे? दिस इज द कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-ब्यूटेन और N-ब्यूटेन. किसके लिए? ये N-ब्यूटेन के लिए. एनी डाउट? प्लीज नोट डाउन दिस. सो मैंने बताया था ना कि हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे. सो
अगर समझो मैंने पूछा, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं तुम लोग को होमवर्क के लिए, तुम लोग ट्राई करना। आई होप एवरीबडी ड्रॉन दिस ग्राफ। ये सबने ड्रॉ किया है ग्राफ? हेलो, ओके गुड। सो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग को लिखना है मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन फॉर ईच। ओके, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल conformation, most and least stable conformation for each. Example 1, CH2F, CH2F, ये तुम लोग होमवर्क में ड्रॉ करना। न्यूमन प्रोडक्शन फॉर्मूला ही ड्रॉ करो। CH2Cl, CH2Cl, CH2OH, CH2OH, ठीक है। फोर्थ वन CH2F and CH2OH, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन that is CH2COOH and CH2COOH, ठीक है। ये तुम लोग ड्रॉ करो। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। सब लोग ड्रॉ करके लो एंड ये होमवर्क मुझे तुम लोग कब तक भेजोगे? कल रात तक भेजना, मुझे व्हाट्सएप करना है मुझे। क्रिश, okay, we used to Yes, send sir. images, whatever you have done, you have to send the image on personal text. Okay. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग इसका पोलैरिटी वगैरह भी चेक करेंगे, मतलब डाइपोल मोमेंट वगैरह भी मैं बता दूंगा तुम लोग को कैसे करते हैं। फिर और एक एडिशनल चीज मैं तुम लोग को बता दूंगा विच इज नॉट देयर इन अ सिलेबस एट ऑल, वो है हाउ टू कन्वर्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये आगे जाके जब हम लोग मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे तब वो काम की चीज रहेगी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। दोज हु हैव फिनिश्ड दे कैन लीव द मीटिंग। इनको डाउट है, स्टे विथ मी, बाय।